Assalamu alaikum, welcome to my channel Education at Ease. Today we are going to start our next chapter, chapter number 4, Cells and Tissues. So let's see the learning objectives of this chapter. You will going to learn about microscope and emergence of cell theory. Microscope कब इजाद हुआ, किसने इजाद किया और उसके बाद फिर क्या cell theory आई. About light microscope and electron microscope. उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे cell structure and its function, difference in prokaryotic and eukaryotic cells, relationships between cells, function and structure. Then cell size and shape as they relate to surface area to volume ratio, and then active and passive transport of matter, diffusion, osmosis, active transport, exocytosis, facilitated diffusion, filtration, endocytosis. These are all transport means of transport of matter. Then tissues, animals tissues and plant tissues. चैप्टर कंप्लीट पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, क्योंकि सिर्फ मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करके नोट्स बनाकर उसी की वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े सोल्यूशन में और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए. So let's start. Encircle the correct answers. Which is responsible for high resolution of the electron microscope? Electron microscope की high resolution किस वजह से होती है, क्या responsible है इसके लिए? That is B, short wavelength of electron beam. Number 2 is what is the function of the rough endoplasmic reticulum? Rough endoplasmic reticulum का क्या काम होता है? That is synthesis of protein banana. Which statement about the fluid mosaic model of membrane structure is correct? That is B. The more the unsaturated the fatty acids and the more fluid nature. जितना ज़्यादा unsaturated acids होंगे उतना ही fluid nature होगा. Which process allow movement in and out of the cell? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इन तीनों में से कौन सा प्रोसेस अलाउ करता है सेल से मूवमेंट इन और आउट? द आंसर इज बी, 1 and 2 ओनली. नंबर 5 इज ऑल आर पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी एक्सेप्ट. तमाम पोस्टुलेट्स ऑफ सेल हैं लेकिन सिर्फ एक नहीं है इनमें से, वो कौन सा है? सेल डज नॉट कंटेन द हेरिडिटी मटीरियल. नंबर 6 इज सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ. सेकेंडरी वॉल किस चीज से मिलकर बनी होती है? दैट इज सी, सेलुलोज एंड लिग्निन. सिलेक्ट द ऑड वन. इनमें से जो डिफरेंट लग रहा है उसे सिलेक्ट करना है. एंड द ऑड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. द आंसर इज बी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी बॉडीज एंड देन लाइसोसोम. सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि हेल्प करता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में? ए, लाइसोसोम. सिलेक्ट द मिसमैच. इनमें से कौन सी चीज मिसमैच है? सी, दैट इज सी, राइबोसोम्स. सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स. राइबोसोम्स में स्टेरॉइड्स नहीं बनते बल्कि प्रोटीन्स बनती हैं. नाउ मूव टू ब्लैंक्स. नंबर 1 इज माइक्रोस्कोप्स आर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू प्रोड्यूस मैग्निफाइड विजुअल image. Number 2, resolution of a microscope is defined as the smallest distance between 2 points. Magnification of a light microscope is formed by using mixture of power of the eyepiece and the objective lens. Electron has a much shorter wavelength than visible light, and this allows electron microscopes to produce high resolution image. In plants, the cell wall is composed mainly of strong fibers of cellulose. Cell membrane is composed of double layer. Diffusion is a passive process which does not require energy input. Plant cell loses water and cytoplasm shrinks in a process called plasmolysis. Special type of movement of specific substances through carrier protein is facilitated. The microtubules arranged in a very particular pattern to form centriole are 27 in numbers. Now move to definitions of this chapter. There are 10 terms are given to define. Number 1 is exocytosis. Exocytosis is the process of moving materials from within a cell to the exterior of the cell. एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है मटेरियल्स को मूव करने का सेल के अंदर से बाहर की तरफ. This process requires energy and is therefore a type of active transport.
और सेल की मूवमेंट, जो भी मटेरियल सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, इस मूवमेंट के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड। वेसिकल्स अ बबल लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट सेल्युलर प्रोडक्ट्स एंड डाइजेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट विद इन द सेल। वेसिकल्स बबल लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोर करते हैं सेल्युलर प्रोडक्ट्स को और डाइजेस्ट करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को सेल के अंदर। Cartilage, a firm rubbery tissue that cushions bones at joints. A flexible kind of cartilage makes up other parts of the body, such as the larynx and the outside parts of the ear. कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन होती है जो कि जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है, जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि कुशन का काम करती है। जब हम बेंड करते हैं अपने जॉइंट्स को, तो जो हार्ड बोन है वो वहां से स्टिफ ना हो जाए। इसके अलावा जो हमारा लैरिंग्स है और जो पार्ट्स ऑफ एयर है, आउटर पार्ट ऑफ एयर है, वो भी कार्टिलेज बोन का बना हुआ है। Nucleoplasm, it is a protoplasm type substance that is present throughout the cell body. Outside the nucleus, it is composed of a thick fluid and chromatin fibers. न्यूक्लियोप्लाज्म एक प्रोटोप्लाज्म की तरह का सब्सटेंस है, लिक्विड फ्लूइड होता है जो कि सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, और ये बना होता है कुछ थिक फ्लूइड से और इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। साइक्लोसिस, द सर्कुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद इन अ सेल। सेल के अंदर जितना भी प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं, उसकी जो सर्कुलेशन होती है उसे साइक्लोसिस कहते हैं। Plasmolysis, a shrinking of a protoplasm of a living cell due to loss of water by osmosis. जब osmosis का प्रोसेस होता है तो सेल में से वाटर रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से श्रिंक हो जाता है सेल, जिस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन दैट कैन स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड एज 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। रेजोल्यूशन किसी भी माइक्रोस्कोप की ऐसे डिफाइन की जा सकती है कि सबसे कम डिस्टेंस जो 2 पॉइंट्स के बीच में है स्पेसिमेन के, उनको हम किस तरह अलग कर सकते हैं या हम किस तरह उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर। टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यूज जो है वो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है और उनका फंक्शन भी सिमिलर होता है। मैग्निफिकेशन, द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। किसी भी इमेज को बड़ा करके देखना मैग्निफिकेशन कहलाता है। Now move to differences of the chapters given in the exercise. Distinguish between the following in tabulated form. 3 differences given है: prokaryotic and eukaryotic cell, mitochondria and chloroplast, lysosome and ribosomes. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cells don't possess membrane bound organelles. Prokaryotic cell में membrane bound organelles नहीं होते, जबकि eukaryotic cell में membrane bound organelles मौजूद होते हैं। Have no true nucleus, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक के पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए। सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, एंड यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे होते हैं और लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज बहुत स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का साइज लार्ज होता है। सेल डिवीजन अकर थ्रू बाइनरी फिजन। प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिजन होती है। बाइनरी मींस 2 एंड फिजन मींस टूट जाना, मींस कि एक सेल 2 में टूट जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जिसके बाद एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट एंड एल्गल सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया तमाम सेल्स में प्रेजेंट होता है जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल और एल्गल सेल में होता है। एल्गल मींस एल्गी के सेल्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होता है, यूजुअली कलरलेस, एंड क्लोरोप्लास्ट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर। माइटोकॉन्ड्रिया कलरलेस होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। इट्स शेप इज लाइक बीन। माइटोकॉन्ड्रिया बीन शेप्ड होता है और क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप होता है। स्टोर सोलर एनर्जी इन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के जो बॉन्ड्स हैं उनमें सोलर एनर्जी
स्टोर होती है, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट करता है शुगर को केमिकल एनर्जी में एज एटीपी। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू बिल्ड ग्लूकोज। माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को ग्लूकोज बनाने के लिए, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। लाइसोसोम्स कैन बी फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स। लाइसोसोम्स सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं लाइसोसोम्स, जबकि राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मेम्ब्रेनस प्रोटीन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स से मिलकर बनते हैं, और जो राइबोसोम्स हैं वो आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म एंड द राइबोसोम्स आर फाउंड आइदर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रिमेन स्कैटरिंग इन साइटोप्लाज्म। या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होते हैं या फिर पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं। इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन है उसमें हेल्प करते हैं लाइसोसोम्स, जबकि राइबोसोम्स जो है वो सिर्फ ट्रांसलेशन करते हैं मैसेंजर आरएनए की। Now move to short questions and answers of the exercise. Write short answers to the following questions. Question number 1 is why mitochondria is also called powerhouse of the cell. Mitochondria को powerhouse of the cell क्यों कहा जाता है? Mitochondria are cell organelles present in the eukaryotic cells. They are involved in cellular respiration. They release energy from food. They generate energy-rich molecules ATP from cellular respiration, which is later used for other process. Hence, mitochondria are called as the powerhouse of the cell. Mitochondria एक cell organelle है जो कि eukaryotic cells में present होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके नतीजे में, जिसके प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज होती है फूड से। वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो है वो एटीपी कहलाते हैं, जो कि बाद में बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस में एज अ एनर्जी यूज होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। व्हाई आयोडीन यूज्ड टू स्टेन द अनियन पील। आयोडीन को अनियन पील की स्टेनिंग के लिए क्यों यूज किया जाता है? स्टेनिंग हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाई करके देखनी है, तो हम डिफरेंट सेल्स को स्टेन करते हैं, कलर करते हैं। आयोडीन कैन स्टेन नॉट ओनली स्टार्च बट आल्सो एंटर्स द सेल वॉल, cell membrane pores and can facilitate the staining of the nucleus, rendering it more visible under the microscope. आयोडीन सिर्फ स्टार्च को ही स्टेन नहीं करता, बल्कि वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के पोर्स और न्यूक्लियस को भी स्टेन कर देता है, जिसकी वजह से जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ज्यादा विजिबल नजर आती हैं ये चीजें। Iodine can work as a stain on animal cells as well, causing the cell membrane and nucleus to appear more visible. Iodine animal cell पे भी work करता है, जिसकी वजह से cell membrane और nucleus बहुत ज्यादा visible नजर आता है हमें under microscope. How electron microscope is different from simple compound microscope? Electron microscope किस तरह से compound microscope से different है? Compound microscope uses glass lenses and electron microscope uses electromagnet. Compound microscope में glass lenses यूज होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं एज अ लेंस। यूजेस अ बीम ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। बीम ऑफ लाइट को ही लिया जाता है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है। इंटरनल वैक्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ इंटरनल वैक्यूम रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंटरनल वैक्यूम एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है। मैग्नीफाइज द ऑब्जेक्ट अबाउट 2000 टाइम्स। 2000 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर देता है ऑब्जेक्ट को, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 2 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करता है, मींस इससे बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता है ऑब्जेक्ट को। व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल क्यों होती है नेचर में? ऑल लिविंग सेल्स आर सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। तमाम लिविंग सेल्स जो हैं वो सराउंडेड हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन से। दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू अक्रॉस इट। और ये अलाउ करती है सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को मूव करने में इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स। बहुत से ऐसे मटेरियल्स, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट होती है एक सेल से दूसरे सेल में। How facilitated diffusion is different from active transport? Facilitated diffusion active transport से कैसे different है? Active transport is an active process. Thus it requires energy, whereas facilitated diffusion is a passive process and does not require energy.
Active transport uses carrier proteins. Energy is used to change the shape of the carrier protein. Facilitated diffusion uses both gated channel proteins and carrier proteins in transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है विदाउट एनर्जी काम करती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है या पैसिव प्रोसेस कहलाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करता है कैरियर प्रोटीन्स को। कैरियर प्रोटीन्स की शेप चेंज करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल प्रोटीन्स भी यूज करता है और कैरियर प्रोटीन्स भी यूज करता है ट्रांसपोर्ट में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई सेल इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है जानदारों का। A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all life's processes. Cells are the structural, functional, and biological units of living beings. A cell can replicate itself independently, hence they are known as the building blocks of life. Basic unit of life consider किया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लाइफ प्रोसेसेस के लिए। बहुत से लाइफ प्रोसेसेस जो बॉडी में चल रहे हैं वो सेल की वजह से चल रहे हैं। सेल स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है लिविंग थिंग्स का, लिविंग बींग्स का, जो कि खुद को रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, और इसीलिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जैसे बहुत सारे ब्लॉक्स मिलकर एक बिल्डिंग बनाते हैं, अगर ब्लॉक्स नहीं रखे जाएं तो बिल्डिंग भी तामीर नहीं हो सकती। इसी तरह हमारी बॉडी है, एक बिल्डिंग की तरह है। हमारी ये बॉडी की जो बिल्डिंग है ये इन्हीं सेल से मिलकर बनी है, इसीलिए इन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और हमारी बॉडी को फंक्शन भी करवाते हैं। Now let's move to detail answering questions of the exercise. Question number 1 is describe structure and function of nucleus with the help of diagram. Structure और function बताना है nucleus का with the help of diagram. What is nucleus? Nucleus is defined as a double membrane eukaryotic cell organelle that contains the genetic material. Nucleus क्या होता है? Double membrane eukaryotic cell organelle है जो कि genetic material contain करता है। Here you can see the diagram. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है, देन न्यूक्लियर एनवेलप है, पोर्स मौजूद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है, और जो अंदर का लिक्विड या फ्लूइड है जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, और न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर. The nucleus is the command center of the cell. This is because it contains the genetic material of the cell. Therefore, it consists of a number of structural elements which facilitate its function. Nucleus एक command center है सेल का, क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, यही कमांड कर रहा होता है पूरे सेल को, और इसमें बहुत से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि फंक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं। The nucleus of a cell has a spherical shape. A nucleus diagram is very useful for studying its structure. Its structure consists of the following important parts. Nucleus जो है वो spherical shape में होता है। इसकी डायग्राम अभी हमने देखी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। हम इसके कुछ important parts को डिस्कस करते हैं। Nuclear membrane. This is an aspect of the nucleus that differentiates eukaryotic cells from prokaryotic cells. Furthermore, it is a structure of double layers. Moreover, it contains phospholipids. Nuclear membrane ही वो main aspect है जो eukaryotic cells को prokaryotic cells से differentiate करता है। Means जो prokaryotic cells हैं उनमें nuclear membrane nucleus के around मौजूद नहीं होती, और ये double layer है जिसमें phospholipids मौजूद होते हैं। यह phospholipids से मिलकर बनी है। This forms the lipid bilayer nucleus envelope. Also, it contains nuclear pores. Nuclear pores are made up of proteins, and through them substances enter and exit the cell. Nucleus का envelope lipid bilayer से मिलकर बना है, और इसमें nuclear pores मौजूद हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बने हैं, और इसी से substances enter भी होते हैं और exit भी होते हैं सेल से या न्यूक्लियस से। Nucleoplasm. It is a type of protoplasm. Furthermore, it consists of enzymes, organic molecules, and dissolved salts. न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड है, प्रोटोप्लाज्म है न्यूक्लियस का, जिसमें कुछ एंजाइम्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और डिसॉल्व सॉल्ट्स मौजूद होते हैं जो उसे फ्लूइड बनाते हैं। इट एक्ट एज अ कुशन टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स, और ये कुशन का काम करता है, प्रोटेक्शन देता है न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स को, एंड इट हेल्प्स मेंटेन इट्स शेप, और ये शेप मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है।
Nucleolus, this is the most important organelle. It is a dense structure which lacks its own membrane. एक बहुत डेंस स्ट्रक्चर है, बहुत थिक होता है ये, लेकिन इसकी अपनी कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती. इट ब्रेक्स अप ड्यूरिंग सेल डिवीजन बट देन रिफॉर्म्स आफ्टर माइटोसिस. जब सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है, तो ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और आफ्टर माइटोसिस दोबारा बन जाता है. इट्स शेप डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द राइबोसोम्स. इसकी शेप डिपेंड करती है कि कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन है राइबोसोम्स का. क्रोमोसोम्स, these are thread-like structures. Moreover, they are made up of strands of DNA as well as histone proteins. Thread-like structure होते हैं जो कि DNA की strands से मिलकर बने हैं और histone proteins भी इसमें present होते हैं. histone proteins को DNA के strand ने बिल्कुल surround किया होता है और वही पूरा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है. फंक्शंस, क्या फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के? न्यूक्लियस परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. दे आर एज फॉलोज. न्यूक्लियस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द जीन्स. न्यूक्लियस हेल्प करता है सिक्योरिटी मेंटेन करने की जीन्स की. इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द सेल बाय रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करके कंट्रोल करता है पूरे सेल की फंक्शंस को. सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, हर ऑर्गेनल का एक डिफरेंट काम है. उनके काम को प्रोग्राम करना, उनके काम कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है. It controls the hereditary traits of the organism. It stores DNA strands and proteins. Hereditary traits कहते हैं कैरेक्टर्स को. जितने भी ऑर्गेनिजम्स के हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, उन्हें कंट्रोल करना और डीएनए के स्ट्रैंड्स को और प्रोटीन्स को स्टोर करने का काम भी न्यूक्लियस करता है. The nucleus is the site of RNA transcription. न्यूक्लियस में ही RNA की ट्रांसक्रिप्शन होती है. RNA कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड. It governs genes expression and also facilitates DNA replication. जीन एक्सप्रेशन को भी गवर्न करता है और फैसिलिटेट करता है डीएनए की रेप्लिकेशन को. डीएनए रेप्लिकेट होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. जब सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है तो जितना भी डीएनए एक सेल में मौजूद था उसकी कॉपी बनती है और उसकी रेप्लिकेशन का काम भी न्यूक्लियस का होता है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स. जितने भी एंजाइम्स बन रहे हैं सेल में उसकी कंट्रोल भी, उसको भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज माइक्रोस्कोप? डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप क्या है? Microscopes are instruments designed to produce magnified visual or photographic images of objects too small to be seen with the naked eyes. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला डिजाइन किया गया है जो कि मैग्नीफाई कर देता है किसी भी इमेज को. मैग्नीफाई मीन्स बहुत बड़ा करके दिखाता है. जो ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से ऐसे नहीं देख सकते, उसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं. टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स that are used in microscopy: light microscope and electron microscope. Light microscope. In a light microscope, visible light passes through the specimen, the biological sample you are looking at. A photograph of an image taken through a microscope is called micrograph. The magnification of a light microscope is formed by using a mixture of powers of the eyepiece and the objective lens. लाइट माइक्रोस्कोप अक्सर हम यूज करते हैं लैब्स में जब हम स्पेसिमेन को स्टडी कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. तो जो इमेज हमें नजर आ रही होती है वो बनती है आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के मिक्सचर की, उन दोनों के पावर के मिक्सचर से, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नीफाई होके बड़ा होकर नजर आता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप दैट दे प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ स्पेसिमेन बाय यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स rather than a beam of light. Electrons have a much shorter wavelengths than visible light, and this allows electron microscopes to produce higher resolution images than standard light microscope. Electron microscope में इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज होते हैं और जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज होती है. जो नेचुरल लाइट है, सनलाइट है, वही उसे यूज करके ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज होते हैं. ये रेजोल्यूशन जो है वेवलेंथ शॉर्टर होने की वजह से ज्यादा होती है, ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता है ऑब्जेक्ट को. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन नॉट जस्ट होल सेल्स बट आल्सो द सबसेल्युलर स्ट्रक्चर्स एंड कंपार्टमेंट्स विद इन देम.
A live cell cannot be imaged by electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिर्फ सेल को ही एग्जामिन नहीं करता बल्कि जो उसके अंदर मौजूद सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा डीप में जाके मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है जिसे स्टडी करना इजी होता है। 2 टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो कि बुक में गिवन है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। In scanning electron microscopy, a beam of electrons moves back and forth across the surface of a cell or tissue, creating a detailed image of the 3D. Okay, scanning electron microscopy में basically 3D image बन रहा होता है जो कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब मूव बैक होते हैं या फोर्वर्ड मींस आगे पीछे की तरफ मूव होते हैं तो वो सरफेस से टकराने की वजह से हमें 3D इमेज नजर आती है। इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इट कंट्रास्ट द सैंपल इज कट इनटू एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस बिफोर इमेजिंग and the electron beam passes through the slice rather than skimming over its surface. Transmission electron microscopy is used often to obtain detailed images of the internal structure of the cell. ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम तब करते हैं जब हमें कोई ऑब्जेक्ट जो है एज अ स्लाइस मिलता है, जैसे हम बहुत से स्ट्रक्चर्स टिश्यूज वगैरह को जब हम स्टडी करते हैं एनिमल या प्लांट के तो हमें उन्हें स्लाइसिस में कट करके माइक्रोस्कोप में रख के उनके स्ट्रक्चर्स को देखना होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो उन स्लाइस से पास हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर नजर आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाता है हमें। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, describe fluid mosaic model of cell membrane, also draw the diagram. Fluid mosaic model. S.J. Singer and G.L. Nicholson proposed a fluid mosaic model of the cell membrane in 1972. This model describes that phospholipid acting like matrix and conjugated glycoproteins, glucose and proteins together may float freely in this matrix. दो साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने एक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो मैट्रिक्स की तरह बिहेव करते हैं और जो कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं मींस ग्लूकोज और प्रोटीन्स जो हैं वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं फ्रीली, उसके ऊपर तैर रहे होते हैं उस मैट्रिक्स के ऊपर। फॉस्फोलिपिड का एक मैट्रिक्स है, एक लिक्विड है, उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स freely float कर रहे हैं। This model describes the structure of the cell membrane as a fluid structure with various proteins and carbohydrates components floating freely in the membrane. ये मॉडल डिस्क्राइब करता है हमें स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का कि एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स फ्लोट कर रहे हैं फ्रीली मेम्ब्रेन में। All the exchanges between the cell and its environment have to pass through the cell membrane. और जितनी भी exchanges हैं सेल के environment से मीन्स के एक सेल से दूसरे सेल में वो पास होती हैं इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। The cell membrane is selectively permeable to ions. जो सेल मेम्ब्रेन है वो selectively permeable है मीन्स कि वो अपने अंदर से कुछ चीज़ों को पास आउट होने देती हैं और कुछ चीज़ें पास आउट नहीं हो सकती मीन्स कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सकते हैं क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, सोडियम, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड and larger molecules, glucose and amino acids, and controls the movement of substances in and out of the cells. It performs many important functions within the cell. बहुत important functions perform करते हैं जैसे कि osmosis है, diffusion है, transport of nutrients है, एक सेल से दूसरे सेल में process of ingestion and secretion है। ये तमाम processes जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहे होते हैं। डायग्राम देखते हैं हम। ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन विद कार्बोहाइड्रेट अटैच एंड ग्लाइकोलिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन्स का चैनल है। फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, 2 लेयर्स मौजूद हैं। ये फॉस्फोलिपिड के दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बीच में मौजूद है ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बाइलेयर है जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।